اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ، کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کہ افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اذا اتخذ الفیء دوالا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو، اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟
होगा? उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम किए जाएंगे, इफ्तार पार्टियां दी जाएंगी, और अंदर में बुग़्ज़ छुपा होगा, अंदर में नफरत छुपी होगी, अंदर में उसके शर से बचने के लिए ये सारे हू हा हो रहे होंगे। और क्या होगा? वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिरकावारियत की आग भड़क उठेगी, और नादान खतीब वो ऐसी आग लगाएंगे, ऐसी आग लगाएंगे कि सारा चमन जल के राख हो जाएगा, और जो उम्मत औरों को साया देने वाली थी वो एक दूसरे का गले काटने पर लग जाएगी। मस्जिदों में आग भड़क उठेगी फिरकावारियत की और नफरत की और तासुब की। और क्या होगा? वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां आम हो जाएंगी, गाने वालियां ज़ाहरत का एक मतलब है कसरत हो जाएगी, हर तरफ गाने बजाने। दूसरा मतलब ये ज़ाहरत, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ मैडम के लक़ब पाएंगी, फनकारा कहलाएंगी, अवार्ड दिए जा रहे हैं। नाचने वाले गाने वाले कौमी हीरो कहलाए जा रहे हैं। हाय हाय, उस उम्मत का डूबना मुकद्दर हो ही जाता है। जहां नाचने वाले, जहां गाने वाले, जहां बल्ला पकड़ के खेलने वाले हीरो बन जाएं, वहां उस कौम का डूबना ही मुकद्दर है, उस कौम का डूबना ही मुकद्दर है। या सिर्फ एक गेंद और बल्ले पर लोग कुर्बान हो रहे हों और फिदा हो रहे हों, और नाचने वाले और गाने वालियों पर लेबल लगाए जा रहे हों और उनको मेडल दिए जा रहे हों, और घर घर तहजीब नंगी हो चुकी हो। और आज का केबल तुम्हें क्या दिखा रहा है? कौन सा एबटाबाद का घर है जहां जहां इज्जत का दामन चाक ना हुआ हो, जहां हया को उठा के बाहर न फेंक दिया गया हो, जहां शर्म और हया किसी पहाड़ की चोटी में जाकर दफन न कर दिया गया हो। वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां, गाना आम, मौसीकी आम। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आ तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। अरे तुम अपने शायर की मान लो, अल्लाह रसूल की नहीं मानते हो। इकबाल मरहूम ने कहा था, तुम्हें कौमों की तकदीर बताऊं, कौमों की तकदीर बताऊं, उरूज व ज़वाल की दास्तान बताऊं। वाकई हकीम शख्स, वाकई अल्लाह ने हिकमत से भर दिया तो शख्स हो। एक शेर में सारी दुनिया की तारीख बता दी। तो तुम्हें कौमों की तारीख बताऊं, जब कौमें उभरती हैं और इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ती हैं और इक़्तिदार के मिंबर को वो मुज़य्यन करती हैं, तो उनका नगमा तीरों की सनसनाहट, तलवारों की झंकार और नेज़ों की खड़खड़ाहट, ये उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं, जब वो पस्ती का शिकार होती हैं, और जब वो बेहिस होकर मुर्दा होती हैं, तो फिर क्या होता है कि तबला और सारंगी उनका फन बन जाता है, फिर तान सेन उनका लोक फनकार बन जाता है। आए हाय, कौमों का ज़वाल मौसीकी है और कौमों का उरूज इन गलास्तों से निकलना है। मेरे भाइयों, जब माएं रुल जाएं, बाप का हाल ना पूछा जाए, तो जमीन ना कांपे तो क्या करे, पत्थर ना बरसें तो क्या करें। और क्या होगा? वशुरबतिल खुमूर, और शराब पी जाएगी, शराब की महफिलें सजेगी, और जालिम छुप के पीता, सबको बुला रहा है, आज मेरे घर में, आज कॉकटेल पार्टी है, शराब की महफिल है, हमारे घर में आज महफिल मौसीकी है, आ जाओ। अब तो घर घर, हमारा एक बूढ़ा मुअज्जिन हुआ करता था, हम छोटे छोटे होते थे, वो कहा करता था, पुत्रो एक दिन आना है, घर घर कंजरी नचनी है, एक दिन आएगा घर घर कंजरी नाचेगी, घर घर कंजरी नाचेगी। तो हम कहते, चाचा हाजी ये तो क्या कहता है? वो कहता, हमें हमारे बड़ों ने कहा था, मुझे भी नहीं पता, पर हमें हमारे बड़ों ने कहा था कि एक दिन आएगा घर घर कंजर खाना बनेगा। केबल ने आके हर घर को कंजर खाना बना दिया। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नंगा नाच हो रहा हो और शर्म और हया से आंखें न झुकें। जब FIR काटने वाला
चंद कोड़ियों पर अपने कलम को बेच दे, मुजरम को महरम, महरम को मुजरिम बना दे। जब अदालत का काजी चंद कोड़ियों पर अपने इंसाफ को बेच दे और मजलूम को जालिम कर दे, जालिम को मजलूम कर दे, बेगुनाह को लटका दे, मुजरिम को छोड़ दे, जब ये हो रहा हो। और एक और जालिम भी बताऊं जिसे कोई भी जालिम नहीं कहता, अल जफा कुल अल जफा, जुल्म है बहुत बड़ा जुल्म, निफाक है बहुत बड़ा निफाक। कौन कौन? आपने फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान की आवाज सुने और मस्जिद में न जाए, ये बड़ा जालिम है। जमीन तो कोई कोई दबाता है, कत्ल कोई कोई करता है, दुकानें कोई कोई कब्जे ग्रुप कोई कोई हैं, पर नमाज ना पढ़ने वालों से तो दश्तो सहरा भर चुके हैं, जंगल और बयाबां भर चुके हैं, शहरी देहाती भर चुके हैं। ये जुल्म सारी धरती पे हो रहा है कि अल्लाह बुलाए और उठ के ना आया जाए। जब जुल्म होता है, जब जुल्म होता है तो पहाड़ लरजने लगते हैं, मजलूम की फरियादें अल्लाह के अर्श के किंगरे हिला देती हैं। जब धरती जुल्म से भरती है तो फिर जल्जले आते हैं, जब जिना आम होता है तो फिर जल्जले आते हैं, जब मौसीकी की महफिलें सजती हैं तो फिर जल्जले आते हैं, जब शराब पी जाती है तो जल्जले आते हैं, जब माँ को जलील किया जाता है तो जल्जले आते हैं, जब बाप को धक्के दिए जाते हैं तो जल्जले आते हैं, जब गाने वालियां मुहतरम हो जाएं तो फिर जल्जले आते हैं, जब मस्जिदों में लड़ाइयां हों तो फिर जल्जले आते हैं, जब घर घर मौसीकी के घुंघरू बज रहे हों तो फिर जल्जले आते हैं, जब चारों तरफ पायल की छंकार हो और घुंघरू की छन छन हो तो फिर जल्जले आते हैं, जब जालिम जानी शराबियों को सरदार बना दिया जाए तो जल्जले आते हैं, जब हुकूमत के काजी जज अफसरान बदयानत हो जाएं तो जल्जले आते हैं, जब ताजर बदयानत हो जाएं, अवाम सूदखोर हो जाएं। ये बैंकों में किसका पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट किसने खोले हुए हैं, ये किसको सूद मिल रहा है और ये कौन सूद ले रहे हैं। जब ताजर बदयानत हो जाए तो जल्जले आते हैं, जब जुए पर सारी कौम लग जाए, जब इनामी बॉन्ड खरीद कर दुआएं मांगी जाएं कि मेरा बॉन्ड निकल आए। ओ जालिम जालिम जालिम, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? अल्लाह की हराम करदा चीज अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा जुआ हराम, और एक अल्लाह करे मेरा बॉन्ड निकल आए, मेरा बॉन्ड निकल आए। फिर जुए पर जुआ, जुए पर जुआ के नंबर खरीदो, सीरियल खरीदो। ओ मेरे भाइयों, जब ऐसे सरेआम जुआ होगा तो जल्जले आएंगे, जब सरेआम लड़कियां नाचेंगी तो जल्जले आएंगे, जब ताजर बदयानत होंगे तो जल्जले आएंगे, और जब मालदार बखील हो जाएंगे और ज़कात देना छोड़ देंगे तो जल्जले आएंगे, और जब उलमा के कदम अल्लाह की बजाय मखलूक की तरफ उठेंगे तो जल्जले आएंगे, और जब माओ के आंसू पूछने के लिए औलाद के पास वक्त न होगा तो जल्जले आएंगे, जब जब शराब पी जाएगी तो जल्जले आएंगे, जब रेशम पहना जाएगा और सोने को मर्द भी सोना ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे औरतें इस्तेमाल करती हैं तो फिर जल्जले आएंगे। ये मेरे नबी की सच्ची खबरें हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप सारे भाई, जमीन की सफाई का वक्त आ चुका है। जब गटर उबलते हैं तो फिर कमेटी वालों को बुलाया जाता है, हमारा गटर बंद हो गया है, साफ करो। जब तक गंदगी अंदर चलती रहती है कोई शोर नहीं मचता, जब गंदगी बाहर उबल के आती है फिर बुलाया जाता है, साफ करो, नालियां सीधी करो। जब तक बदमाशी और अयाशी चार दीवारी के अंदर और छत के अंदर होती है मेरा अल्लाह भी दरगुजर करता है, लेकिन जब उबल उबल के बाजारों में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, चोटियों पे आ जाए, छतों पे आ जाए, ऐवानों में आ जाए और शवारे पर आ जाए और खुले आम आ जाए तो फिर ये गटर है जो गंद बन के निकला, गलाजत बन के निकला। अब जमीन कहती या अल्लाह मुझे पाक कर, मुझे पाक कर,
مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو۔ یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔